وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करोड़ शुक्र है, उसका एहसान है कि उसने अपने हबीब नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा। He has blessed us with many of the bounties and rewards, and He has done many of the blessings upon us. And we say thanks to Allah subhanahu wa ta'ala millions of times. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our ibadah, may Allah subhanahu wa ta'ala accept our fasting, sahar and iftar, and all the deeds that we possibly can do in the month of Ramadan. May Allah subhanahu wa ta'ala have mercy upon the children of Gaza. May Allah subhanahu wa ta'ala have mercy upon the children of Palestine and anywhere else around the globe. May Allah subhanahu wa ta'ala have mercy upon the whole Muslim world. आज सूरा तकवीर और एक और सूरा इसके बाद दोनों के बारे में तफसील से बात होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमु कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यरत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वुहूशु हुशिरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत व इज़न नुफूसु ज़ुव्विजत व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत व इज़ा सुहुफ़ु नुशिरत व इज़ा समाउ कुशितत। यहाँ तक ये 11 आयात है। These are 11 आयात। Allah subhanahu wa ta'ala talks about in this surah Mubarakah particularly about the signs of the क़यामत। क़यामत के आने के जो मामलात हैं और क़यामत किस तरह होनी है, क्या क्या मामला होगा, उसके बारे में अल्लाह इसमें ज़िक्र फरमाता है। इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज लपेट दिया जाएगा। When Allah subhanahu wa ta'ala will fold the sun. अब यहाँ से मुराद है, folding से मुराद है कि अल्लाह subhanahu wa ta'ala will take the light out of the sun. Sun will be destroyed. सूरज को अल्लाह जब क़यामत का नज़दीक आएगा सूरज की रोशनी ख़त्म हो जाएगी। सूरज की रोशनी ख़त्म हो जाएगी, when sun has no light, it will become dark, and the people, human being, they will run towards the jinn, and jinn will run towards the inhuman beings, and they're trying to go towards one another. And one of the narrations says that all the animal will from the east will run towards the west, and the animal of the west will run towards the east, and they will try to ask what is going on and share this news that they have seen that sun has no light, all of a sudden he has lost his light. तो ये जो सूरज अपनी रोशनी खो देगा, तो इसे अल्लाह तआला ने क़यामत के नज़दीक ये निशानी में से एक निशानी है कि सूरज अपनी रोशनी खत्म है जिस दिन क़यामत आनी है, उस दिन के वाक़े इज़न नुजूमुन कदरत, और फिर सितारे बिखर जाएंगे। यानी आसमान में the star that we see shining, they will lose their light and they will start to go down, start to get destroyed. वो भी ऐसा ऐसा टूटने शुरू हो जाएंगे, वो तबाह होना शुरू हो जाएंगे, ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। ये भी क़यामत की निशानी में से निशानी होगी। वइज़ल जिबाल सुय्यरत, और जब पहाड़ों को उखेड़ दिया जाएगा, तो all the mountains will be taken up, और ज़मीन में जो गाड़े हुए अल्लाह तबारक तआला ने, the way Allah subhanahu wa ta'ala placed them on the earth, they will go into they will shatter into the sand, वो बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। वइज़ल इशारु उत्तिलत, और जब 10 माह की गाबन ऊँटनी छठी फिरेंगी। तो अब अरब में ये ऊँट का जिक्र क्यों किया? This is common in Arab people. They love camel, and a female camel which is pregnant by almost 10 months, and in Arab when the camel is about to give birth, and it is something very important for the Arab people. Arab में ये रवाज है कि जब ऊँटनी 10 माह की हो जाए, बच्चा देने वाली हो, उस वक्त उसकी बड़ी देखभाल करते हैं, उसे खुला छोड़ देते हैं जंगल। They leave them alone so they can eat, that camel can eat whatever they want, and they can go anywhere they like, बस लेकिन एक साथ रखवाला होता है जो उसकी हिफाज करे। और उस वक्त उस ऊँट की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, उनके लिए बड़ी अहमियत रखता है कि जो ऊँट जो है she camel whichever is pregnant, तो अल्लाह फरमाता है वो फिर जाएंगे, यानी वो बच्चा देना। अब यहाँ पे है कि या तो वो बच्चा देंगी नहीं, they will not give birth to a child, or they will give birth to the baby or the camel, but that camel will come out from the she camel as a dead. तो बच्चा जो पैदा होगा वो गिर जाएगा, ये अबॉर्शन जैसे होता है जो बच्चे ज़ाया हो जाता है, इस तरह से
वो ऊँटनी का बच्चा ज़ाया हो जाएगा। कहा कि ये भी जब ऐसा मामला होगा जब अरब के लोग अपने अरूज पे होंगे और जो ऊँट होंगे जो प्रेग्नेंट होंगे, दोज कैमल हु आर प्रेग्नेंट they will not give birth to their babies, जो उनके बच्चे होंगे जो जानवर होंगे वो भी, ये भी क़यामत की निशानी होगी। इस निशानी की वजह बताया कि ऊँट का जिक्र स्पेसिफिकली क्यों किया, so to tell the people of Arab at that time you will realize when you feel that happen all of a sudden with your own your camel, remember that day is the last day of your life, that day is the judgment day। क़यामत आ चुकी है, जिस क़यामत का तुम जिक्र कर रहे हो, this is one of the signs of Allah subhanahu wa ta'ala for the day of judgment। वहशी जानवर यकजा कर दिए जाएंगे। all these animal of the from the jungles and all the around wherever they are, all of them will come together, they will run towards one another और इकट्ठे कर दिएंगे, एक जगह पे आ जाएंगे। अब यहाँ से मुराद ये भी है कि क़यामत के दिन the day of judgment, the animal and all these human being and jinn, all of them, they will come together, they'll be in one field, open field, they will be there and they will forget about their fitrat. Fitrat is something like a snake, it has the fitrat, it's his job, it is duty, it is this is what he does. Snake bite. Yeah? Who's got the horn at the back? किस कलर की है? Silver. Silver. जाओ ब्लॉक कर देंगे। अच्छा जी, तो खैर अल्लाह तबारक तआला बताते फरमाते क़यामत का दिन ऐसा मंजर होगा, the moment will be like this, that all the human being and men, women, animal and all these the creations of Allah subhanahu wa ta'ala, all type of creation will get together in one place, but they will forget about their own fitrat. Like snake, it bites, a lion, it attacks, like, and the lion and goat will be next to one another, but they will forget about their fitrat. Lion will forget about they love hunting goat. A snake will forget about it bites people. All these insects and all these crocodiles and all these things that you name it, they will forget about their fitrat. अपनी फितरत को भूल जाएंगे, उनकी आदत जो है कि हमारा ये काम है, हमने बाइट करना है, काटना है, हमला करना है, उसको भूल जाएंगे। All they would worry about the day of judgment. ये सबको ये परेशानी होगी, ये ख्याल होगा कि अल्लाह के बारगाह में हाजिर हो रहे हैं, हमारे अमाल का हिस्सा चल रहा है, तो हमसे पूछ कर छोड़नी है। We have to answer to Allah subhanahu wa ta'ala, so they will not worry about their own fitrat or what their habits are, वो जो करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं हमने उनको जानवरों को सबको इकट्ठा कर दिया जाएगा, सबको इकट्ठा कर दिएगा। और सब समुंदर भड़क दिए जाएंगे। अब समुंदर की जो समुंदर का जो पानी है, the sea that we see, there's water around the sea, Allah subhanahu wa ta'ala, it starts to boil like a fire and then turn into a fire। अब यहाँ समुंदर के भी हवाले से काफ़ी बातें हैं और काफ़ी मुफस्सिरीन ने अपने अपने अंदाज में इसके बारे में बयान किया है। They've mentioned that some mention that Allah subhanahu wa ta'ala will begin the fire of Jahannam from the sea of the dunya, यानी ज़मीन से। और बाज़ ने यहाँ तक कहा कि the fire of the Jahannam is below the sea, यानी समुद्र से नीचे या ज़मीन के नीचे वो भड़क रही है, कुछ यहाँ तक कहा। लेकिन जो सही बात है वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला has already created the Jahannam, so the fire is already there. That is a different fire, but the fire of the dunya, fire of the sea of this dunya, it will turn into the fire. So the people will feel, and these are the signs of the Qiyamah, and they will begin of that। and इसी के बारे में जब वो समुद्र आग उगल रहा होगा, when the समुद्र, the sea will be boiling like a fire, and the fire, the jinn from that area will run towards the human being to tell them this news that have you seen the sea has turned into a fire। वो इस तरह दौड़ेंगे एक दूसरे की तरफ। तो इसके बारे में भी ये आता है कि वो इस तरह, लेकिन ये समुद्र भड़का दिए जाएंगे और जब जाने जिस्मों से जोड़ी जाएंगी, वाइज़ नुफूस ज़ुव्विजत, यानी जिस्मों से जोड़ी जाएंगी और जब जिंदा कर दी जाएंगी बीवी बच्ची। अब हाँ, यहाँ से आया बच्ची का अल्लाह जिक्र किया कि बच्चे जो लोग बच्चियों को मारते हैं, यानी उन बच्चों को जो कम उम्र में मरती हैं, जैसे वाइज़ल नुफूस ज़ुव्विजत व इज़ल मौऊदत सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत। कहा कि अब जाने जो जिन जानों को जिस्मों से जोड़ दिया गया, those souls have been taken from the bodies in very early stage, जैसे अबॉर्शन करते हैं जो लोग ये करते निकाल देते जिस्म से,
जाने वक्त से पहले निकल जाती है वो, और कहा कि जो जिंदा दरगोर किए जाते हैं, जो those who are buried alive, and Allah subhanahu wa ta'ala will question them, then why were you killed? अब जो मारा गया है उससे पूछेगा तुम्हें क्यों मारा गया? होना तो ये चाहिए, the one who is killing that child, that person should be questioned. And Allah subhanahu wa ta'ala will question, instead of the one who is killing the killer, Allah is asking the one who is being killed, or who was killed. Allah उससे सवाल करता है, बच्ची से सवाल किया जाएगा। अरब में ये बड़ा रवायत था। मार गई कोई बात नहीं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, कहीं मुद्दत में होता है चमन में दीदार पैदा। थोड़ा सा सीखने में मुद्दत लगी थोड़ा। खैर, ये अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि बच्चियों को जो कत्ल किया जाता है, those children who were buried alive, Allah subhanahu wa ta'ala will question those children on a day of judgment. Then tell me what happened to you, what have you done, that what was the reason for your parents to kill you? अब वो बच्ची मरने वाली को तो क्या पता कि मुझे क्यों मारा जा रहा है, लेकिन अरब में ये दस्तूर है कि जब कोई गलत काम करता है तो जो बंदा गलत काम करता है उससे सवाल करने की बजाय जिसके साथ गलत काम हुआ उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ ये गलत काम करने वाले ने क्यों किया, why they did this wrong with you. The reason being, so the person who has done wrong, he realizes and he feels ashamed that he in front of people, the person who became the victim of this incident, he tell the story what they did and why they did. सिर्फ उसको तस्दील किया जाता है. अब मिसाल के तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने जो मामला इन्होंने किया मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, when Musa अलैहिस्सलाम, the nation of Musa अलैहिस्सलाम, when they did wrong, and Allah subhanahu wa ta'ala questioned Musa अलैहिस्सलाम, why your qawm did this. So that qawm feel ashamed, the nation feel ashamed that our beloved prophet is being questioned by Allah subhanahu wa ta'ala over the wrongdoing that we did. यानी उनका ताल्लुक नहीं है, मूसा अलैहिस्सलाम ने गलती तो कुछ नहीं की, गलती अब बछड़े की पूजा तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने की, गुनाह तो ये करते थे, नाफरमानी ये करते थे, लेकिन अल्लाह सवाल मूसा अलैहिस्सलाम से करता है, मूसा तू बता ये क्यों ऐसा कर रहे हैं. तो मूसा अलैहिस्सलाम तो नहीं, अल्लाह तो खुद जानता है why they are doing this, but still ask question, so they feel ashamed. इसी तरह अल्लाह क़यामत के दिन भी पूछेगा कि बच्चियों बताओ कि तुम्हें मारने वाले की, तुम्हें मारने वाले को ये शर्मिंदगी वहां हो और सबके सामने वो शर्मिंदगी हो ताकि वो जलील और रुसवा हो. So he feel ashamed in front of people what they did is wrong. अब बच्चियों का सवाल जिक्र जब हुआ तो बच्चियों के बारे में काफी हदीस मुबारक है कि काफी लोग जो अरब में बच्ची पैदा होती थी वो उसको मारते. अब इसमें बच्ची पैदा होने को मारने की काफी वजूहात है. उनमें एक वजह ये भी है कि वो ये यकीन रखते थे कि बेटी जब पैदा होती है तो बेटियां नाउज़ुबिल्लाह खुदा की जो फरिश्ते हैं, ये वो फरिश्ते हैं खुदा के जो रूहूरे हैं उनको, और खुदा के बेटियां हैं और खुदा के नौकर हैं. इस तरह से इनका एक अकीदा था अरब में. दिस काइंड ऑफ अकीदा दे had. The daughter, when the girl is born, these girls, these angels are actually the wives of Allah subhanahu wa ta'ala, or the children of Allah subhanahu wa ta'ala, or they are the servant of Allah subhanahu wa ta'ala. That's why we do not want them. And anybody who has these a daughter born, they used to bury them alive, either in the very early age as soon as born, or if they find out and they let them grow up at least for a few years, when she starts to understand, starts to walk, and then they used to take her outside somewhere in the jungle and used to dig a big well, and they throw the child in that well and pour sand on top or the soil on top. उनको इस तरह जिंदा दफना देते थे. अब ये इतना आम था कि कुछ सहाबी रसूल, नाम नहीं मैं लूंगा उनका, उनसे सवाल कि जब ये आयत मुकद्दसा नाज़िल हुई तो उनसे पूछा गया तो रोने लगे कि हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, I buried not one daughter, not two daughters, I buried 6 daughters alive. एक दो नहीं, मैंने 6 बेटियों को या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफनाया और जिंदा इस तरह गाड़ा है. तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम they started to weep, started to shed tears. और कहा कि तेरा दिल कैसे माना? Of course, because he became Muslim and all the sins are wiped away. Yet still Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, then you need to give sadaqah on that what you've done. The actions you've done, these are not an ordinary action. You've not just done one.
So you have to make sure you have either 6 daughters again, or you give sadaqah or khairat on their behalf. तो वो सहाबी फरमाते या रसूल अल्लाह मेरे पास अब बेटियां तो नहीं है, I'm not able to have any children anymore, I'm in that age. Rasul says, what can you do then on that behalf? He says, Ya Rasulullah, have camel. Rasul said that for each daughter sacrifice 1 camel in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Then he sacrificed the camel on behalf of those daughters, and he seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. And then one of the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I buried a few of my daughters, but one of the daughter I remember, and I cried so much for that. Whenever I remember her face, I cry. Rasulullah said, tell me what you did. He says that Ya Rasulullah, I made her wear nice clothes, and she was asking me. And she was asking me about where we're going, and I said to her, I lied to her that I am taking you for the meal. We're going out for a dawat, right? And on the way when I was going, I was digging the hole. When I started digging the hole, and she kept bringing me the water. When I was sweating and I was feeling thirsty, she kept bringing that water back to me. Said, Baba Jan, have this water. And she did not know that I'm about to bury her alive, and I'm digging that hole for her. But she was still worried about me. मेरे बारे में परेशान थी कि बाप को पसीना आ रहा है. And she was old enough to understand that I am suffering from the hunger and thirst, and she was bringing me that water over and over again. And she was looking after, she was wiping my face. And then when I get tired, when I sit down, she comes down and sit with me. And then I start again digging, and then she gives me that shawl back to me. ये ले ले बाबा, आप इसे फिर से कर ले काम. And वो बच्ची को जब मैंने दफनाया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए. He started crying when he buried, even when before Islam, before he became Muslim, he said, Ya Rasulullah, I feel that so much. मुख्तलिफ रवायतों में, एक रवायत में यूँ भी आता है कि हुजूर पाक ने फरमाया कि मुझे जरा उस जगह पे लेके जाओ जहाँ पे तुमने उसे दफनाया. और हुजूर पाक ने कहा कि तू चाहता है कि मैं तेरी बेटी को वापस जिंदा करूँ तो उससे माफी मांग ले. तो कहा कि अगर ऐसा हो तो बहुत जरूरी है. तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसकी बच्ची को वापस जिंदा किया और फिर उसे पूछा कि क्या तू चाहती है वापस दुनिया में आना या उसी दुनिया में रहना चाहती है. उसने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसी दुनिया में रहना चाहती हूँ, वापस नहीं आना. हाँ, जो मेरे बाप से गलती हुई तो मैंने अपने बाप को माफ कर दिया. So imagine the mother कि बच्ची, बाप जिंदा दरगोर कर रहा है लेकिन बेटी फिर भी बाप की देखभाल कर रही है कि बेटी को बाप को तकलीफ नहीं हो रही. तो इस तरह की बहुत सी रवायतें मौजूद हैं बच्चियों के हवाले से. तो खैर यहाँ अल्लाह फरमाता है कि हम बच्चियों से, उन बेटियों से पूछेंगे जिनको जिंदा दफन कर दिया गया था. We will ask the question that what was the purpose of your parent burying you alive. वो उससे सवाल किया जाएगा. तो फिर और जब अमाल नामे खोले जाएंगे, फिर अल्लाह फरमाता है फिर अमाल नामे खोल, your deeds are open. Then at that time when the day of judgment begins, your deeds are open. And जब आसमान की खाल उधेड़ दी जाएगी, then the sky will torn apart. और उस आसमान फट जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा आसमान में. जब आसमान में तारीकी है या अंधेरा, ये खत्म हो जाएगा और जहन्नम दहका दी जाएगी. then अल्लाह सुब्हानहू व तआला start the fire to more in Jahannam. This fire of the sea or the dunya is different than the fire of the Jahannam. और वो फिर और तेज कर दी जाएगी. अल्लाह सुब्हानहू व तआला will put the fire even more higher in Jahannam. और फिर अमाल नामे खोले जाएंगे, जिनके अमाल नामे जब खोले जाएंगे, इसके बारे में भी मुख्तलिफ रवायतें हैं तफसीर में कि अल्लाह तबारक व तआला ग्रोह बना देंगे. The group of people, about 3 group of people from the believers and some group of people from the non-believers. अब जो यहूदी है उनको यहूदियों के साथ खड़ा कर दे. Jews will be with the Jews, whether they are good or bad. Christian will be with the Christian, whether they are good or bad. And the non-believers will be in different ways, whether they are good or bad. And Muslim will be in the same way. मुसलमानों को मुसलमानों के साथ. लेकिन फिर इनमें से हर गिरोह में, हर लोगों में, हर कौम में गिरोह बना दी जाएंगे. They will make another group amongst those people, those who have done good deeds and they were very good, and Allah subhanahu wa ta'ala put them on a side completely. And those who had some good deeds, some bad deeds, they will be on completely different side. And those who had no good deeds, they always done some wrong things and they went away from the right path, they were still Muslim, they still under the fold of Islam, but they did all wrongs, so they would be in a different group. तो इस तरह से उनके अमाल नामों को कर दिया जाएगा. इस तरह से भी ये मामलात उनके चलेंगे. तो खैर, और जब जहन्नम दहका जाएगी और जब जन्नत करीब कर दी जाएगी,
तो उस दिन हर शख्स जान लेगा कि वो क्या लेकर आया है। तो फिर जब जहन्नम का मामला बढ़ जाएगा, जहन्नम भी रेडी है for the punishment of the people, Jahannam is ready, and Jannah will also, Allah subhanahu wa ta'ala bring it closer to those people who would feel and would be entering in the Jannah। और दूसरे रिवायत में भी तो सभी देख सकेंगे उसको, पहचान सकेंगे कहाँ तक है, और लेकिन अपने आमाल के हिसाब से वो जाएंगे कि who is going to go in Jannah and who is going to go in Jahannam। फिर मैं कसम खाता हूँ पीछे हट जाने वाले तारों की। अब अल्लाह दोबारा फिर कसम खाता है कि मैं कसम खाता हूँ तारों की जो पीछे हट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, the star will disappear, they will go away, there's no light in them। अल्लाह दोबारा से अब इससे आगे का मामला चल रहा है कि मैं कसम खाता हूँ सितारों की और सीधे चलने वाले रुके रहने वाले तारों की। मैं तारों और तारों दोनों की जो चल रहे हैं उनका भी, the stars and the universe in the galaxies, so many of them, the stars and the moon, the sun, there are many other places। Allah subhanahu wa ta'ala said that all those stars which are circling around and the stars were stationary, all of them will destroy। और सब स्टारों की कसम खा के कहता हूँ कि जब रात रुखसत होने लगे और सुबह की सांस ले लेगी, तो ये कुरान मुअज़्ज़ज़ कासिद का कौल है। अब ये शैतान का कौल नहीं है, कुरान मजीद जो है ये किसी शैतान का, अब इसमें आगे का अल्लाह फरमाता है कि कुरान मजीद जो खास है, मुअज़्ज़ज़ कौल है, किसी आम आदमी का कौल नहीं, और ये शैतान नहीं लेके आया, इसको लाने वाला जो है वो अल्लाह की ज़ात है, और जिस पर ये नाज़िल किया गया वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बड़ी मुअज़्ज़ज़ किताब है, बड़ा मुअज़्ज़ज़ कासिद है जो इसका जो लेकर आया, ये पैगाम जो लेकर आने वाला, ये भी कोई आम नहीं है। तो अल्लाह फरमाता है कि हम तो इन चीजों की कसम खा के कहते हैं कि ये चीज जो तुम्हारे पास आई है ये बिल्कुल हक और सच है। और इसमें तो फिर अब अल्लाह तआला यहाँ पे जिक्र फरमाता है क़ुव्वत वाले फरिश्ते का। अब यहाँ पे इन्नहु लक़ौलुर रसूलुन करीम, यानी बड़े का रसूल जो लेकर आए बड़े करीम है। ज़ी क़ुव्वतिन इन्दा ज़िल अर्श। अब यहाँ पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ तो बड़ा क़ुव्वत वाला फरिश्ता है जिसका जिक्र हुआ, कहा कि वो अर्श पे जो बड़ी क़ुव्वत वाला एक है, मालिक है अर्श के, यहाँ इज्जत वाले, यानी उसके बड़ी इज्जत है उसकी। अब ये फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो हुजूर पाक तक लेकर आए, हुजूर पाक ले, अब यानी शैतान नहीं लाया कि जो लाने वाला है उसको। अब यहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला बड़ा ही इज्जत और ताकत वाला है और सब फरिश्तों का सरदार है और वहां का अमीन है। अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब मेराज पे गए तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जब देखा, कहा कि जिब्राइल मुझे अपनी असली हालत दिखाओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपनी असली हालत दिखाई। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जब अपनी असली हालत दिखाई तो आपके हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पर जब खोले तो मशरिक और मगरब दोनों पे वो पर आ गए, पूरे मशरिक और मगरब को आपने मशरिक जिब्राइल अलैहिस्सलाम के परों ढांप लिया। तो एक रिवायत में और कुरान पाक में 600 परों वाला, यानी 600 पर है और एक पर की ताकत इतनी है कि जब आपसे पूछा गया कि एक पर की ताकत, तो आपने बताया कि लूत अलैहिस्सलाम की जब कौम पे अल्लाह ने अज़ाब डालना था तो 4 बस्तियां, the 4 of these villages from the Lut al-Islam, the nation of Lut al-Islam, from them that they picked up 4 village from the ground, from the earth, and they lift them all the way up in the sky. Even the people in the sky could hear the voice of the animal on those village। पूरे यानी पूरे के पूरे गांव को, 4 गांव को ऊपर उठा लिया जमीन के साथ। आप फरमाते जिब्रील साहब फरमाते हैं मेरे एक पर का बिल्कुल नुक्कर थी, the corner of one of the feather of जिब्रील अलैहिस्सलाम। कहा कि मेरी ताकत का अंदाजा या रसूल अल्लाह यहाँ से लगा लें कि मैंने एक पर की जो नुक्कर थी, बिल्कुल corner of that पर of my feather, I used that and I lift 4 village of Qawm Lut and from the earth, including earth, all the way up to the sky। अब यहाँ तक, और वहां से फिर आपने ये बात की आपकी जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जो ताकत है, इसलिए अल्लाह फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम बड़े ही कवी हैं। और आपकी जो असल सूरत है उससे फिर के बारे में हुजूर पाक ने जब कहा कि जिब्राइल मुझे अपनी असली सूरत दिखाओ, जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपनी असली सूरत में आए, पहले तो कहा कि या रसूल अल्लाह शायद आप देख ना पाए, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं मैं जिब्राइल देख सकता हूँ। जब रब्बे ज़ुल जलाल ने अपना दीदार करने के लिए मुझे बुलाया है तो मैं तुम्हें तो देख ही सकता हूँ। तो फिर इस और ये सूरह नजम में भी ये जिक्र आया कि हज़रत हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा जब उन्होंने पूरे पर खोल दिए, तो जो है अपनी असली हालत में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आया, फिर करीब आते चले गए जिब्राइल अलैहिस्सलाम। तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको देखा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा, उनका दीदार किया।
बाज लोग यही कहते हैं कि जब जो सूरह नजम में जिक्र है जिसमें अल्लाह फरमाता दना फतदल्ला फकान काबा कौसैन अदनैन से मुराद वो कहते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही है जिनके करीब हुजूर पाक आए थे, लेकिन असल में ये सिर्फ जिब्राइल अलैहिस्सलाम से हालत पूछी, असली हालत देखी थी। जो दना फतदल्ला वाला मकाम है ये अल्लाह और हुजूर अलैहिस्सलाम की जात अक़दस के दरमियान था, ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ नहीं था। तो खैर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना आप दिखाया, असल हालत में दिखाया। तो फिर हजूर पाक से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह आपने मुझे मेरी हालत में असली हालत में देखा, द वे यू सी मी इन माय रियल फॉर्म, रियल शेप, आई वांट टू सी द रियलिटी ऑफ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भी अपनी आप हकीकत दिखा दें। तो फिर उसके बारे में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ आपके जो नूर के ऊपर 70,000 पर्दे डाले थे, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लिए हुजूर पाक ने सिर्फ अपना एक पर्दा हटाया था। Out of the 70,000 veils on the beauty of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when they lifted that one veil, and Jibreel alayhi salam could not open the eyes to see the face of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. और एक रिवायत में ये भी आया कि वो जमीन पे आते थे तो एक मरतबा हुजूर पाक को मिलने आना चाहते थे कि मैं हुजूर पाक को देखूं, तो मिलने जाते तो जिब्राइल से पूछा, अल्लाह ने कहा जिब्राइल कहाँ जा रहा है, तो इतना आज तैयार होकर किधर जा रहा है, तो कहा कि बारी ताला आज मैं हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार करने जा रहा हूँ। तो उस वक्त अल्लाह ने हुजूर पाक से कहा कि ए मेरे महबूब, जरा जिब्राइल आ रहा है, इसको आज अपने जलवे तो दिखा, अपनी महबूब को बता तो सही कि तेरा जो मैंने महबूब बनाया उसकी खूबसूरती का आलम क्या है। तो ये तेरे बशरी लिबास पे इतना फिदा है, तेरे नूरानियत का मामला इसके सामने क्या होगा। तो जब आप आए तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए तो आंख नहीं खोल सके और हुजूर पाक का चेहरा अनवर नहीं देख सके और वापस गए अल्लाह के पास और एक बार कहा कि बारी ताला, मैं तो तेरे महबूब को उस तरह देखना चाहता हूँ जिस तरह अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक, उस्मान गनी और अली मुर्तज़ा देखते हैं, मेरे अंदर ताकत नहीं है, तूने मुझे वो आंखें नहीं दी कि मैं मोहम्मद अरबी का दीदार कर सकूं उसकी असलियत में। अल्लाह फरमाते हैं कि ए मेरे जिब्राइल, अभी तो उसने एक पर्दा हटाया है, मेरे महबूब की खूबसूरती का जो 70,000 पर्दे जो मैंने डाले उनमें से एक ही पर्दा हटाया था। मैं चाहता था कि तू जो इतनी मोहब्बत से जाता कि जरा तू भी तो जलवे कर, तूने भी तो अपना आप अपने महबूब को दिखाया है। तूने कहा था ना कि या रसूलल्लाह आप नहीं देख पाएंगे लेकिन वो देखते रहे आपको, तो अब तेरी बारी थी, तुझे भी दिखाना था। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को दिखाया। तो खैर जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये बड़ा ही ताकतवर फरिश्ता है और ये बड़ी इज्जत वाला है, बड़ी इकराम वाला है, जिसका एक सरदार है तमाम फरिश्तों का, और कोई आम फरिश्ता शैतान नहीं है। अब ये शैतान कहना इस तरह से कहना अल्लाह का इन आयत में, ये इसकी वजह ये थी कि कुफार और मुशरिकीन ये इस चीज का मजाक उड़ाते थे कि शैतान है जो नाउज़ुबिल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम को ये आयत मुक़द्दसा ला के देता है। कहीं वो जिन कहते थे, कहीं मजनू कहते थे, कहीं जादूगर कहते थे, कुछ नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि ये जो तुम्हें आयतें ला के देता है और ये जो पुरानी किताबों के किस्से जो आके सुना रहा है ये वही किस्से हैं, तो ये तुम्हें शैतान आके नाउज़ुबिल्लाह ये सुना रहा है। तो उसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि ये कोई और नहीं, ये तो अल्लाह तबारक व तआला का खास और बड़ा ही ताकतवर ये फरिश्ता है जो आता है, जो सब फरिश्तों का सरदार है, अमीन है, और तुम्हारे लिए ये कोई मजनू नहीं है, बिलाशुबा ये कासिद है रोशन किनारे पर, ये बिल्कुल एक बड़ा रोशन है, इसमें कोई वो नहीं है, और ये नबी गैब बताने वाले हैं। ये जो हुजूर अलैहिस्सलाम को बताया कि अब ये गैब बताने वाले। अब जो लोग इनकार करते हैं वो यहाँ पे आके जो नहीं क्योंकि अल्लाह ही खुद बयान कर रहा है तो इसलिए तो ये, लेकिन हुजूर पाक को खुद से कुछ नहीं था, हुजूर पाक को अल्लाह ने इल्म अता किया था तो इल्म का है ना। तो हम कभी नहीं कहते कि हुजूर पाक का इल्म जाती है, जाती किसी का कुछ नहीं है, जात सिर्फ अल्लाह की है, हर चीज जात में सिर्फ अल्लाह की है, हर चीज का मालिक रब्बे जुल जलाल है। सिफात उसने बहुत सी दी, अब जैसे देखना है, अब हमारी समात है, बसारत भी, अल्लाह समीप भी है, बसीर भी। अब हम नाउज़ुबिल्लाह ये थोड़ी कहते हैं हमें ऐसे समी कहते हैं सुनने वाले को, बसीर कहते हैं, तो हम भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं। कलीम जो कलाम करता है, कलाम करने वाले भी है, लेकिन ये हमारी नहीं है, हमें अल्लाह ने ताकत दी तो ये है, अल्लाह का दिया हुआ है। Whatever we have, it is given by Allah subhanahu wa ta'ala. So the knowledge, whatever Allah wanted to give to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we say Al-Huzur had the knowledge of unseen. That knowledge was given by Allah subhanahu wa ta'ala. It did not belong to any of the prophet. अल्लाह ने जिसको जो चाहा अता किया, ये अताई है, खुदाई नहीं है, खुदाई सिर्फ अल्लाह की है, अल्लाह की तरफ से है, और ये अता करता है सब कुछ, ये अल्लाह ने जिनको अता किया उसी की तरफ से। तो खैर ये गैब नबी बताने वाले हैं, ये कुरान शैतान मरदूद का कौल नहीं है, तुम मुंह फेर के किधर चले जा रहे हो।
नहीं है ये मगर नसीहत अहले जहां के लिए, यानी उनके लिए नसीहत है जो इस नसीहत को मानना चाहते हैं, जो इस नसीहत को नहीं मानना चाहते, those who do not want to accept that as advice, it is not advice for them, it's only for those people who wants to seek advice from it. इसलिए कुरान मजीद जब बंदा पढ़ता है, आम आदमी पढ़े, तो यहाँ तक भी उलमा फरमाते हैं कि आम आदमी कुरान पाक खोल के उसको पढ़ने लग जाए, तर्जुमा पढ़ने लग जाए, तो अनकरीब है कि वो काफिर हो जाए. It is very close that he loses his iman, because reading the Quran Majid without the alim or without ulama, they would not be able to understand, and they would see some of the things which are beyond their thinking. तफसीर के बगैर पढ़ेगा बंदा और किसी आलिम के समझाए बगैर पढ़े तो वो तो काफिर हो जाएगा, वो तो कुफर तक उस पे. अब जैसे यही लगा लें सूरह नजम की जो आयत है उन्हीं को लगा लें कि जिसमें कहा कहता ना वल्लाह फकान का, वो यही समझेगा हुजूर पाक मेराज के लिए यहाँ से आसमानों से चल के आसमानों का इतना सफर करके गए और जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दीदार करने के लिए. जबकि हुजूर पाक ने फरमाया जिब्राइल अलैहिस्सलाम को तो मैंने पहली मरतबा गार में सुना देखा, फिर जिब्राइल साहब मुझे गले भी लगाया, और फिर उसके बाद मैंने दोबारा जब वही नाज़िल मुनक़ता हुआ, दोबारा जब वही शुरू हुई, फिर मैंने आसमान पे देखा तख्त लगाए हुए बैठे थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम, तो उनको तो हुजूर पाक उस वक्त भी देख लिया, तो फिर स्पेशल ऊपर मेराज में जाकर फिर उन्हीं को देखना था, उनको तो वो जमीन पे देख रहे थे. तो ये चीजें गुमराह कर देती है बंदे को. इसलिए कुरान मजीद के लिए उलमा कहते हैं कि आम आदमी का अगर समझना है कुरान मजीद तो किसी आलिम दीन के पास बैठे. ये तफसीर है, इसलिए ये छोटी सी सूरत है, ज्यादा बड़ी सूरत नहीं है, लेकिन इसकी तफसीर पर भी बड़ी गहराई है. जहन्नम के हवाले से अल्लाह ने बहुत सी चीजें बताई हैं कि जहन्नम जब आने वाली है, क़यामत जब आने वाली है, तो क़यामत का जो मामला होगा तो वो ये सारी निशानियां आएंगी. सूरज बेनूर हो जाएगा, चांद बेनूर हो जाएगा, सितारे झड़ने लग जाएंगे, पहाड़ गिरने लग जाएंगे, हर चीज चल जाएगी, हत्ता कि ऊंट अपने बच्चों को गिरा देंगे, जो पेट में होंगे प्रेग्नेंट होंगे वो गिरा देंगे बच्चों को. They will not give birth to any of those. The animal will not give birth, and all the animal will run toward one another, and the sea will start to boil like a fire. जैसे आग दहकती है इस तरह समुद्र का पानी आग बन जाएगा, वो इस तरह दहकने लग जाएगा, हर चीज रेजा रेजा हो जाएगी, और हर मर्द और औरत उनको जो क़यामत के दिन नंगे होंगे, they will be naked but they cannot feel, they do not worry about that. कल मैंने इसके बारे में हदीस पाक अर्ज की थी कि हुजूर पाक ने फरमाया था कि जब क़यामत जब आएगी तो क़यामत के दिन मर्द और औरत नंगी हालत में होंगे मैदान हशर में, और उनको पता और अपने ही पसीने में डूबे हुए होंगे. They will drown in their own sweat. उनको होश नहीं होगी कहां से. जो नेक लोग होंगे उनके आगे एक नूरानी पर्दा होगा, अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा, वहां भी उनका मामला और तरह का होगा. और जो क़यामत के जो मंजर है ये सारी चीजें अल्लाह ने इसी तरह इस सूरत में बयान की. इसके बाद आगे वाली जो सूरत आई उसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसी तरह से जिक्र फरमाया कि जब आसमान फट जाएगा, यानी क़यामत के दिन जो क़यामत आएगी तो उस दिन भी अल्लाह आसमान को इस तरह से खत्म कर देगा. अब ये सूरह अल इंफितार, इज़ा समाउ फतरत व इज़ल कवाकिबु तसरत व इज़ल बिहार फुज्जिरत व इज़ल क़ुबूर बुअसिरत. अब यहाँ पे आया कि आसमान फट जाएंगे, तारे बिखर जाएंगे, all the stars will destroy, everything will go come to an end, and समंदर बहने लगेंगे. अब ये समुद्र वही जो दुनिया के समुद्र है वो बहने लगेंगे आग की तरह. जब कब्रें ज़ेरो ज़बर कर देंगे, कब्रें जो खत्म कर देंगे, all the graves will be destroyed and they will throw whatever inside them. इन जो कब्रों में जो कुछ भी है वो बाहर फेंक दिया जाएगा, निकल जाएगा, और उस वक्त जान लेगा हर शख्स जो अमाल उसने आगे भेजे थे. अब आई बारी के क़यामत के लिए जो कब्र से निकला. अब क़यामत का मंजर समझ आ गया, जब क़यामत आनी तो क्या होना, पिछली में ये बता. अब तक क़यामत आएगी जब लोग जो कब्रों में हैं उनके साथ क्या मामला होगा. Those people who are in the grave, what is going to happen with them? They will be thrown out of their graves. जब सूर फूंका जाएगा तो लोग कब्रों से दौड़ते हुए चले आएंगे और वो कहेंगे कि हमारे साथ क्या मामला. फिर उस वक्त बंदा रियलाइज करेगा, that moment will realize what they have sent before them. अब यहाँ से अब ये मौका है, अब हम जो भी अमल करते हैं ये आगे पहुंच रहा है. Whatever amal we do, whether it's a good amal, whether it's a bad amal, they will take some sort of a shape. अगर अच्छा अमल है तो उसकी शक्ल जो है वो अच्छी चीज की बनेगी. And if the amal is wrong, if we do something wrong, if it's a sinful action, that would have a different and horrific shape. ये हर चीज की शक्ल बनती है, जो भी नेकी की जाए नेकी की अकल से अच्छी शक्ल बनती है, जो बदी की जाती है उसकी भी एक शक्ल बन जाती है. अब नेकी की शक्ल कैसे होगी? जो चेहरा इंसान को पसंद है, जिस चीज से उसको मोहब्बत और उल्फत होती है, जो नेकी बंदा करता है उस नेकी की शक्ल उस तरह की बन जाती है.
और जिस चीज से इंसान को खौफ आता है, जिस चीज से डर लगता है, और जो गुनाह करता है वो उस तरह की शक्ल इख्तियार करते हैं। तो क़यामत के दिन ये भी एक अजाब होगा जब अपना बंदा अपना गुनाह, और कब्र में भी ये चीज महसूस करेगा इंसान। When you go in the grave, you will feel such a kind of fear of those things. If you send so many of the sin, they will come in the grave. There you will have that fear. अपनी कब्र में बंदे को वो खौफ उसका महसूस होगा। तो खैर हर बंदा जान लेगा कि उसने क्या आगे भेजा, जो असरात पीछे छोड़ कर आया था। Whatever we've done in this dunya, whatever we prepared ourselves for, and whatever we sent, we will see on that time, on when we come out of the grave. जो अमाल का मामला जब शुरू होगा, उस वक्त बंदे को पता चलेगा कि मैंने दुनिया में क्या कमाया था। What have I earned and what have I left in the dunya? What have I sent for this moment, for this day? आज के लिए मैंने क्या छोड़ा, और इंसान किस चीज ने तुझे धोखे में रखा। वो अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, तुझे किस चीज ने धोखे में रखा है? या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अल्लाह फरमाता है तुझे किस ने धोखे में रखा है? अपने रब करीम के बारे में। Have you not thought about in a right way about your Lord Allah subhanahu wa ta'ala? किस तरह उसने तुझे बनाया, जमीन में भेजा, सब कुछ दिया, जो जो तुझे चाहिए था, everything was given to you. Whatever you need, even if Allah subhanahu wa ta'ala take one thing away from you, you're nothing. If Allah takes the air away from you, you're nothing. हवा चली जाए, we're nothing. Allah subhanahu wa ta'ala take our nose away from us, we're nothing. बीमार है, paralyzed, we cannot do anything. We are disabled without, if Allah subhanahu wa ta'ala take even one of the deeds, one of the bounties and reward that He has given us, one of the ni'mah Allah take away from us, we are nothing. दिल निकाल ले, दिल जाया हो जाए, खत्म। हमारा पेट का निजाम खत्म हो जाए तो खत्म, भूख खत्म हो जाए तो बंदा खत्म। Many of these things Allah has given us, these are the rewards of Allah subhanahu wa ta'ala. पानी ही अगर उठा ले तो भी हम नहीं रह सकते, खाना खत्म हो जाए, खुराक नहीं है तो भी हम नहीं रह सकते, हवा के बगैर हम नहीं रह सकते। ये ऐसी नेमतें हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता। We cannot even think, but we cannot live without Allah. अल्लाह फरमाता है तुमने, ऐ इंसान, तुझे किस चीज में धोखे में रखा मेरे बारे में? क्यों तुम नहीं सोचा कि यार ये हवा जो आ रही है, जिसमें मैं सांस ले रहा हूं, it must have been created by someone, और वो by someone जो है वो अल्लाह ही की तो जात है। It is no other than Allah subhanahu wa ta'ala, the one who created these things only. और बंदा कैसे भूल सकता है कि इंसान जिसको अब उसकी नाशुक्री करता है, कोई कहता है जी मैं साइंस से पैदा हुआ, कोई बंदर की औलाद बन रहा है, कोई रीछ का बच्चा बन रहा है, कोई पता नहीं खंजीर का बनता है। अल्लाह ऐसे लोगों को उन्हीं की शक्ल में उठाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जब हमने पिछली आयत सूरतों में ये पढ़ा, अल्लाह विल रेज देम इन दोज वेज। जब क़यामत के दिन में उठाए जाए, कोई बंदरों की शक्ल में उठेंगे, कुछ लोग खंजीरों की शक्ल में उठेंगे, कुछ लोग गधों की शक्ल में उठेंगे, वो उनके अमाल के हिसाब से उठाया जाएगा। अल्लाह उनको उठाएगा। तो अल्लाह फरमाता है तो किस बारे में मेरे बारे धोखे में रखा? Why you stayed in that kind of state about me? You did not understand the reality. जिसने तुझे पैदा किया, फिर तुझे आजाद दिए और तुझे दुरुस्त बनाया और तेरे मुकम्मल इंसाफ के साथ तुझे इंसान बनाया। Allah subhanahu wa ta'ala did justice with a human being to make you a human being. Allah did the justice in that way, that the way and in the process, the way Allah has created you, Allah has done complete justice with you. अब अल्लाह को ये सफाई देने की जरूरत तो नहीं है। Allah did not need to tell us that what He has done for us. He's reminding us so we understand. On a day of judgment, we cannot say to Allah subhanahu wa ta'ala, we did not know. You never told us anything. Allah says everything is there in the Quran Majid, Furqan Hamid. We are telling you, we're reminding you how Allah has created us. We know everything. किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कुरान मजीद की कहा हर चीज उसमें है, समझने वाला कोई होना चाहिए। अल्लाह फरमाता है हमने तुझे किस तरह पैदा किया, तेरे आज़ा को दुरुस्त किया, हमने तेरे जिस्म के बॉडी पर, we made your body part in a perfect shape, the way it's done. आज साइंस ने कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन एक ह्यूमन फ्लैश तक नहीं बना सके। They cannot make that. Artificial है, but it's not natural the way a normal बंदे का है. The way we feel, it has the sense, it has the, like the tongue. जुबान के बारे में science only discovered now that it has millions of the taste in one tongue. छोटी सी जुबान है, इसकी जुबान की जैसी जुबान नहीं को बना सका। रब्बे जुल जलाल ने ऐसी जुबान बनाई है। हम तो रोबोट से बहुत से बना दिए, लेकिन वो बात नहीं है जो इंसान तो नहीं बनाना। इंसान बना के दिखाया, फिर इंसान को बनाना कहां से है? कतरे से बनाया, the drop of water.
इस तरह से बनाया जिस तरह अल्लाह ने बनाया, फिर तो को खुदाई कर, फिर तो हमें समझ आया कि यार साइंस भी कुछ करती है। साइंस हर चीज है, बट कुरान में से ही हर इल्म निकलता है। कुरान बताता है, कुरान ने आज बताया है, कुरान ने तो बहुत पहले बता दिया इंसान को कैसे कैसे बनाते हैं। साइंस ने आज डिस्कवर किया कि हाँ इंसान को इतने प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। These are the processes of a human being at that time when there was nobody knew anything about science. There was no thoughts about the science at that time, and the Quran has taught us about the knowledge. Iqra, this is the first word Allah has revealed. Iqra, पहला वर्ड पढ़ो, और पढ़ाया भी किने जा रहा है? जो उम्मी है, जिन्हें कभी पढ़ा भी नहीं, जिन्होंने कभी लिखा भी नहीं, जिनको को पढ़ाने वाला था ही नहीं सिवाय रब्बे ज़ुल जलाल के ज़ात। तो उम्मी नबी, तो ये इस्लाम ने हमें बताया कि ये इल्म क्या चीज है। तो इसको बता दे, इल्म ये साइंस का इल्म ही है, लेकिन इस चीज को इस तरह कर लेना कि साइंस की बदौलत ही बंदे बस हुए पैदा, ये गलत है। अल्लाह वही याद कराता है, बंदे भूल तो क्यों रहा है कि बनाने वाली जात तुझे रब्बे ज़ुल जलाल की जात थी, जिस शक्ल में चाहा तुझे तकदीर दे। अब यहाँ जिस शक्ल में चाहा तुझे तकदीर दे, इससे मुराद अल्लाह ने जिसको चाहा मर्द बना दिया, जिसको चाहा औरत बना दिया। अब यहाँ मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह की जात, अल्लाह के पास पूरा इख्तियार था। If he wanted in the stomach of a woman, he could have made us dog, he could have made us animal, he could have made us donkeys, he could have made us monkeys, he could have made us pigs. कुछ भी बना सकता थी रब के जात पेट में, लेकिन उसने हमें इंसान बनाया। He made us human being, ashraful makhluqat, the best of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala। हमें इंसान बनाया अल्लाह तबारक व तआला, लेकिन वो चाहता तो कुछ भी बना सकता था। और यहाँ जो मर्द और अब यहाँ इसलिए कहा कि ये जो लोग अपने बच्चे, जो पीछे आयत में, जो पिछली सूरत में मैंने पढ़ा कि जो लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते थे, तो वो कहते बेटी क्यों पैदा हुई है, औरत को तंग करते, औरत को मनहूस समझा जाता था। They used to curse that woman whoever gives birth to a daughter। अब लेकिन वो ये चीज नहीं सोचेगा किसी की बेटी को हम समझेंगे बेटी ना पैदा हो, बेटा ही पैदा हो, और सभी बेटे ही पैदा होंगे, तो फिर उन बेटों के लिए बेटियां भी तो लेकर आनी है, शादी कहीं करनी, नस्ल तो तभी चलेगी जब किसी की बेटी होगी तो नस्ल चलेगी ना। और आजकल भी ऐसी सोच लेने वाले बहुत से लोग हैं। इवन नाउ इन दिस डे एंड एज वी लिविंग इन, देयर आर मेनी पीपल हु हैव अ प्रॉब्लम हैविंग अ डॉटर, और इफ अ वुमन हैज अ डॉटर दे वांट टू लीव दैट वुमन, उसको तलाक दिला देते हैं, घर वाले माँ बाप तलाक दिला देते हैं, ऐ जी छाड़ तो होर करा कर देने हैं। ये अल्लाह की जात है। दिस इज अल्लाह सुब्हानहू व तआला, whoever he wants to give boys he gives boys, whoever he wants to give girls he gives girl। This is the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala। ये अल्लाह का मामला फरमाता है कि तो मैं हूं, मैं जिस शक्ल में चाहूं बना दूं जिसको मर्जी। तो अरब के लोगों के लिए कहा कि ये बंदो तुम जो ये औरतों को तंग करते हो, उनको मारते हो, अपनी बीवियों को, ये बच्चियों को जिंदा दफन करते हो, ये शक्लें बनाना तो रब्बे ज़ुल जलाल का काम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला wants to give whoever he wants to give whatever he wants to give। It is in his control, nobody can control that। जिसको मर्जी अल्लाह बेटा बना देते, जिसके लिए मर्जी बेटी दे दे, तो बंदों के लिए कुछ नहीं है। फिर अल्लाह फरमाता है, और फिर तकदीर में ये सच है, बल्कि तुम झुटलाते हो रोजे जज़ा को, क़यामत के दिन को तुम फिर भी झुटलाते हो कि अल्लाह ने किस तरह तुम्हें बनाया, सब कुछ किया, फिर भी तुम क़यामत के दिन, हालांकि अल्लाह ने तुम्हारे पर निगरान फरिश्ते मुकर्रर किए हुए। अब किरामन कातिबीन का जिक्र आया कि अल्लाह ने निगरान फरिश्ते कायम किए कि बंदे के साथ हर लम्हा, जिस वक्त बंदे के अंदर रूह फूंक जाती है, यहाँ तक कि बच्चे का बच्चा माँ के पेट में होता है, 2 फरिश्ते उस वक्त से आ जाते हैं उसके साथ। बाज़ ने कहा बच्चे की पैदाइश के वक्त आते हैं, बाज़ ने कहा, लेकिन सही यही कि जिस वक्त इस आयत के मुताबिक जो अल्लाह फरमाता है, हालांकि तुम पे निगरान, जैसे ही रूह तुम्हारे जिस्म में दाखिल होती है, बच्चे के अंदर जब रूह बंद फूंक दी जाती है, चाहे जब वो माँ के पेट में, किरामन कातिबीन आ जाते हैं, उसकी लिखने वाले, आमाल लिखने वाले, वो हमेशा साथ रहते, दे स्टे विद यू throughout your life। The only time they leave you, it is when you go into the toilet। उस वक्त वो शर्म और हया वाले फरिश्ते होते हैं, इसलिए वो टॉयलेट में तुम्हारे साथ नहीं जाते। अगर वहां जाके कोई बोलता है कि उन्होंने हर चीज लिखनी होती है, they have to write everything, और जब वहां जाकर बोलते तो वो लानत भेज देंगे, तुम उनको मजबूर कर रहे हो वो अंदर आके तुम्हारे अमल को लिख सके। तो लानत भेज, इसलिए टॉयलेट, when you go to the toilet, do not speak, doesn't matter how important that is। बाहर आ जाओ, इस्तेंजा कर लो कपड़े पे, बाहर आ जाओ, बाहर आके बोल लो, फिर कर लो अंदर चल जो कुछ कज़ा हाजिर कर जाए, लेकिन डू नॉट स्पीक व्हाइल यू इनसाइड द टॉयलेट। उसी वक्त छोड़ो, वरना ये हमेशा। अब ये अल्लाह फरमाता है कि हमने तो तुम्हें कभी अकेला छोड़ा ही नहीं। We kept our angels with you all the time। How come you can say that you were alone? You did not know anything about Allah subhanahu wa ta'ala। बंदे किरामन कातिब वो साथ रहते हैं हमेशा मौजूद, और वो हरफ बा हरफ लिखते रहते हैं।
Every single word come out of your mouth. Every single action you do, they write it down word by word, exactly the way you are doing it. बंदा गलत कुछ लिख रहा है बात, कुछ पढ़ रहा है बात, हर चीज वो लिखते हैं। बारी ताला इसने ये पढ़ा, ये इसने लिखा, ये इसने अमल किया, ये इसने अपनी जुबान से बोला। They write everything. वो लिखते हैं, जानते हैं जो कुछ तुम करते हो। They know everything what are you doing. बेशक नेक लोग ऐशो आराम में होंगे। On a day of judgment, the pious people will be proper in peace. They will not have to worry about anything. They will not feel any sorrows, any kind of trouble, any kind of the punishment. On a day of judgment, when people are still waiting for their amal to be counted, they will feel the pain and the punishment is about to come to them. They will feel the thirst and hunger, and they will drown in their own sweat. Yet उनके उस वक्त जब तक अमल का सिलसिला खत्म नहीं होगा, सो तो घबराए हुए होंगे। और जो नेक लोग होंगे, they will be in peace. उनको परवाह नहीं होगी। वो उनके लिए एक लम्हे की तरह गुजर जाएगा वो दिन। और जो बुरे लोग होंगे, गुनहगार होंगे, उनके लिए वो एक दिन हजारों साल के बराबर होगा। That one day will be thousands years long. नेक लोगों के लिए कहा वो आराम में होंगे और ऐश में होंगे। यकीनन बद किरदार जहन्नम में जाएंगे। ये जो बद किरदार होंगे, those people who have bad character, bad people, those who have done wrong, they will go in जहन्नम। और दाखिल होंगे उस रोज क़यामत के रोज, क़यामत के दिन जब उनका अमाल हो जाएगा तो वो फिर जहन्नम में दाखिल होंगे और उससे वो गायब ना हो सकेंगे। They will never able to escape the hellfire. जो जिनको अल्लाह जहन्नम में सजा देगा, जहन्नम में रहेगा, they will never be able to escape from that. और आपको क्या इल्म है रोज़े जज़ा का? What do you know about रोज़े जज़ा, the day of judgment? फिर आपको क्या इल्म होगा? फिर then again Allah subhanahu repeated the same आयत मुबारका। तो ये इस तरह इंसान को अल्लाह ने अभी बार ये पूरे जब तक अभी हमने 3-4 सूरह मुबारका की है, 4 पॉइंट, इनमें मुसलसल क़यामत का जिक्र और कब्र का जिक्र और मौत का जिक्र आता रहा है। Continuously all of these surah mubarakah Allah subhanahu has talked about. It is so that we understand the importance of day of judgment. So we remember the day of judgment, that we have to go from the dunya and we will have to answer to Allah subhanahu wa ta'ala. हम जितना मर्जी गुनाह कर ले, कुछ भी कर ले, जब तक हम अपने गुनाहों पे तौबा नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी. So this is the moment that we have today. We should repent on our sin and seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala, ताकि अल्लाह क़यामत के दिन हमारी पकड़ ना करे, अल्लाह हमें हमारे गुनाह माफ कर दे. आज हमने जो नमाज के हवाले से कुछ हमने पहले गुस्ल की बात की थी, जो फिक़ह की जो बात हुई थी, we talked about the basics of the wudu and then tayammum and the ghusl, and then we talked about the masa, how to do the masa on the on the socks that we're wearing, the leather socks especially. आज नमाज के बारे में इसमें और भी चीज़ें आती हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक्स चीज़ें जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमें ज़रूरत की होती हैं उनके बारे में बात करेंगे. नमाज के औकात जो है, the time, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that we have indeed we have made the salah compulsory first upon you according to that time. अब नमाज का जो वक़्त है, वो औकात है, उनमें फजर जो है वो आप सब जानते हैं सूरज तलू होने से पहले है, और सूरज तलू होने के बाद फजर की नमाज नहीं पढ़ी जाती. तो 5 नमाजें फ़र्ज की गई है अल्लाह तबारक व तआला ने. और दूसरी जो है ज़ोहर की नमाज है, वो जब सूरज सवा नेज़े पे आके ढलना शुरू हो जाए. यहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, दे ऑल वरी अबाउट दिस, कि सूरज पे जब ढलना शुरू से मुराद क्या है, या सूरज सवा नेज़े पे से मुराद क्या है. When the sun comes right above your head and after that when it starts to descend down, तो नीचे की तरफ जाने लगे, जो आप कोई भी एक मिसाल के तौर पे स्टिक ले लें, कुछ छड़ी ले लें, if you take anything which is a stick or anything, you put it there, खड़ी कर दें उसको, और जब सूरज की रोशनी उसके ऊपर आएगी, तो जब वो बिल्कुल साया उसका बहुत छोटा हो जाए, when the shadow of that stick becomes smaller than the stick, तो उसका मतलब वो बिल्कुल ऊपर आ गया. And then slowly when the sun starts to descend down the other side, तो वो जो वही साया, the same shadow starts to spread and starts to get bigger and bigger, until the shadow has gone at least 1/4 extra than the length of the stick. अगर 1 फुट की स्टिक है तो 1 feet and a quarter of the shadow has gone, उसका इतना बड़ा हो जाए, यानी स्टिक की लंबाई से बढ़ जाए, तो उसे कहते हैं सवा नेज़ा, या सवा नेज़े के बराबर हो जाए, या उससे उसके बाद ज़ोहर का टाइम शुरू होता है, and then it goes all the way until the असर सला. असर की नमाज का टाइम मगरिब के टाइम से सूरज गरूब होने से पहले
होता है जब साया जो है 2.5 गुना हो जाए, यानी 2 गुना से ज्यादा हो जाए. So the shadow of the same stick, if it goes double or more than the double, when it starts to go this way, and then the asr time begins. It stays all the way till the sunset. And sun, जब सूरज गुरूब होता है, जो ही गुरूब होता है, तो then do you see the redness of this in the sky after the sun sets, and then after the redness it spread the whiteness. सफेदी फैलती है आसमान पे. And when that whiteness starts to disappear, and the darkness starts to appear, up until that time is the Maghrib time. After the sunset, until the whiteness in the sky stays, it is the Maghrib time. And then as soon as the whiteness disappears and the darkness appears fully, then it begins the Isha time, all the way until the morning time. And the morning time begins, the Fajr Salah begins until when just before the sun rises and the redness comes, and before that the whiteness spread in the sky towards the east side where the sun rises from. So you see the whiteness starts to spread and the darkness starts to disappear. यानी जो अंधेरा है वो छटने शुरू हो जाए और सफेदी शुरू हो जाए. और वो सफेदी जब शुरू होती है, वही टाइम है जब सहरी भी बंद होती है, और वही टाइम है जब फजर का टाइम शुरू होता है. जो ही सफेदी शुरू हो उस वक्त फजर शुरू होती है, until it starts to come. और जब सूरज निकलना शुरू हो जाए तो येलो जो उसकी रोशनी है सूरज की वो आसमान में फैलनी शुरू हो जाए, तो उस वक्त फजर का टाइम खत्म हो जाता है. जवाल जो टाइम है, 3 times of the prohibited time that you are unable, you should not read your salah in that time. One, while the sun is rising. सूरज जब निकल रहा हो, जब सूरज की रोशनी ऊपर छट जाए और फैलने लगे, जब now we know the sun is about to come out, at that moment you should not read any kind of salah which involves the sajda. यानी खड़े तिलावत कर सकते, हर इबादत कर सकते हैं सजदे वाली. even if you reciting the Quran Majid, sajda tilawat is not permissible to do even at that time. सूरज जब निकल रहा, जब वो सूरज निकल के ऊपर आ जाए, when you see the full sun has come up, and then after that you can read your salah. अब आसान लफ्जों में अगर कहा जाए, in simple words, you should wait when the sun is rising at least 10 and 15 minutes, and after that you can start reading the namaz if you want to read the namaz after the sunrise. But during that time do not read any salah. इसी तरह असर की नमाज के बाद जब मगरिब की नमाज का टाइम होता है, so when you know the sun starts to go down, and when you're unable to see the sun, जब सूरज की जो नीचे का हिस्सा है, when it starts to go down, at that moment you should not read anything. उस वक्त कुछ नहीं आपने पढ़ना, सजदे वाली कोई बात नहीं, until it goes down fully. And then when it goes down fully, then you can read the namaz, or giving like a few minutes of time, and then you can read the salah. maghrib की नमाज जिसे कहते हैं, maghrib की नमाज पढ़ सकते हैं. तो ये चीजें, ये टाइम जरूरी है. और जवाब दूसरा जो तीसरा टाइम है वो बिल्कुल when the sun is right above your head, यानी the mid of the day. और उस वक्त जो टाइम है वो भी बिल्कुल जब सूरज बिल्कुल ऊपर हो, यानी शेडो जो हो किसी भी चीज का उस चीज के साइज से छोटा हो, तो वो जवाल का टाइम है. And wait until that shadow starts to grow, यानी उस जगह से बड़ा हो जाए. जैसे when the shadow starts to shorten down, at that time is a zawal time until it starts to come back to the normal. कम से कम उस जो भी चीज है उसके साइज के बराबर का शेडो हो जाए, साया हो जाए, तो फिर बंदा नमाज एटलीस्ट उसके बाद वो कर सकता. जवाल का टाइम फिर खत्म होना शुरू होता है. तो सबसे ज्यादा जो लंबा जवाल का टाइम होता है वो दोपहर का टाइम होता है. It's about between 30 minutes to 40 minutes give or take. ये जो टाइम है जवाल का, दोपहर का टाइम है, ये तकरीबन 30 से जो है 40 मिनट तक होता है, डिपेंडिंग ऑन द एरिया एज वेल. कुछ एरिया में ज्यादा भी होता है, कुछ में कम भी होता है. तो इस तरह से ये नमाज का खास ख्याल है कि वो नमाज वक्त पे होती है. तो नमाज अक्सर वो देखा है कि असर की नमाज जाने वाली होती, मगरिब शुरू होने लगी होती, अक्सर लोग उस वक्त नमाज नहीं लेते. तो ये ख्याल रखना कि when you know there is no time, that if you start reading salah, unless you don't know the time at all and you start reading and then you realize the sun is coming out or your sun is going down, then you should complete your namaz. You should not break the namaz at that time. लेकिन पढ़नी नहीं चाहिए, इसलिए जानबूझ के पढ़ना ये कुफर है. If you do that on purpose, it classes कुफर. ठीक है, क्यों? उसकी वजह ये है कि if you're reading on purpose, the sun is going down. If anybody look at you, because कुफार और मुशरिकीन used to worship sun. वो सूरज जब निकलता था तो वो इसकी बात करते थे, सूरज डूबता था वो इसकी बात करते थे, और सूरज जब बिल्कुल ऊपर होता गर्मी होती थी फिर वो इबादत करते. वो समझते थे कि because they are worshipping them, the worshipping the sun, that's why the sun is coming out,
And when they see the sun is right above their head and it's really hot for them, they start worshipping sun. And the sun starts to go down, the shadow starts to move, and shadow starts to get bigger so they can come under the shade. They start worshipping them. Because we worship, that's why the sun moved from our head. And then the sun goes down and say, the moon will come out, so that's why they start worshipping the sun. The sun has gone down, the moon is now about to come. तो इस तरह की इबादतें किया करते थे, इसलिए इन टाइम पे इबादत करना, नमाज पढ़ना, खास करके सजदे वाली कोई भी बात करना, ये गुनाह है, जानबूझ करना, और शरीक गुनाह और कुफर तक ये बंदे को ले जाता है. इसलिए नमाज पढ़ते वक्त ख्याल रखना कि make sure it's in time, whatever the time. You cannot read Fajr Salah at Zohr time unless it's qaza. You read the qaza, but it's not ada namaz. और जोहर की नमाज फजर के साथ कुछ लोग ऐसे हैं, they think that they should combine all the salah and they read all at one time, और उनकी अदा होगी नहीं. They have to read qaza namaz then. पढ़ सकता है, you can read them, but it will be qaza salah. It will not be ada. And if you miss the prayer, it missed. You have to make up to it. You will not receive the reward of ada salah. ये qaza होगी, qaza का तुम्हें होगा, उसकी सजा है. If you miss a salah and you read it again, there is still a punishment which anybody who misses the salah, they will receive that punishment on the day of judgment. और इसकी भी हुक्बे है. Hukba means a drowning a few times. गोता लगवाना. A few times you'll be drowned in a hellfire missing by one salah. एक नमाज बंदा झोंकता जहन्नम की आग में गोते लगवाए, और चंद गोते, एक भी नहीं, चंद, a few of them. And they say the length of that time period when they will drown you in that hellfire, it will go from 1,000 years to between 500 years to 1,000 years. This is how long that one moment of the Jahannam is. दुनिया के 500 साल से लेके 1,000 साल के लंबा अरसा, क़यामत के दिन इतने अरसे जो बंदा सिर्फ एक नमाज छोड़ी है, कज़ा करके पढ़ी. He did not miss completely. He read it, but he read it after the time has gone. And then he read the qaza salah. This is the punishment of that. So we should seek repentance from Allah subhanahu wa ta'ala. जो कुछ खास अमल की तौफीक अता फरमाए. हमसे इधर जाने अनजाने में कोई गलतियां हुई, अल्लाह अपने हबीब से माफ फरमाए. और जो लोग अल्लाह बीमार है उनको शिफाए आज काम लाता फरमाए. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सल्ली अलैहि. रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार. या मेरे मौला हुजूर सबके पूरे आलम इस्लाम की खैर फरमा. जो कुछ खास अमल की तौफीक अता फरमा. सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन. रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि. इफ्तारी के लोग तो तशरीफ लेते हैं. Please go upstairs for it.